what should be the strategy as far as the ICSE class 10 biology exam goes? But the bigger problem that many students face is that it's almost the second last examination. After that, you have the optional subject examination. So my first question to our guest Smita Agrawal ma'am would be कि आपके सिलेबस में, बायोलॉजी के सिलेबस में ब्रेन है, आई है, ईयर है, लेकिन तब तक तो ब्रेन एक तरह से फ्राई हो गया होगा, भेजा फ्राई हो गया होगा, फीडिंग इट विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स. बायोलॉजी के लिए स्पेस रहेगा? बायोलॉजी में हार्ट भी है सर. ओके, दिल बायोलॉजी के लिए धड़कता है. हार्ट इज ऑलवेज अबव द ब्रेन, सो डोंट वरी. जहां पे दिल होता है वहां पर लास्ट तक फोकस बना होता है. सो बायोलॉजी इट इज this time so it is second last. Yes. And we are always happy with the last paper also. So every year it was the last paper. This time so we are little on a little softer zone. Yeah, because it is the second last. Yes. So don't worry sir, we will do good and excellent in biology. Okay, so what would you tell, what should be the big strategy and big mantra as far as biology is concerned? क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए वाला टाइम तो चला गया. अभी हम इस पर बात करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो आई विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर. द मोमेंट यू गॉट द क्वेश्चन पेपर एंड दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हमारा एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है और हमारा जो है इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है. एंड दैट टाइम आवर हार्ट बीट इज वेरी 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 हाई. सो वो हार्ट बीट से आपको घबराना नहीं है. इट विल बी काम डाउन इन few seconds because आपने बहुत अच्छे से 5 chapters को cover किया हुआ है and definitely you are going good during the examination. Even semester 1 में बहुत अच्छा किया बच्चों ने biology में. So I'm very sure they will do good in semester 2. Number 1, आपको question paper को देखकर घबराना नहीं है, वो आराम से आपका होगा. Read the question paper very carefully because in biology, even in all the sciences, I can say there are the instruction and these instructions are very very important. Like आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, write down the eye layer which is non-vascular. So if you forget to read the word non and you just focus on a vascular, तो आप क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं. Number 2, there is a question where you ask copy and complete the paragraph. So instruction is copy and complete. You have to copy the entire paragraph, then you have to complete it by inserting few words, and don't forget to underline those few words. When you are reading the question paper, that time you must understand the rubrics which is given in the question paper. Now what is the rubrics? That what is the marks distribution? Where see आपको सारे questions आते हैं, then you have to look on the question paper from where you can get the marks easily. कम काम करके आपको अच्छा मिल रहा है, कम रिस्क के साथ में आपको अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं. जहां पर रिस्क है उस वाले क्वेश्चन को आप सेकेंडरी चॉइस में रखें इफ यू नो. तो इसलिए रुब्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है. The second thing is whenever there is a question, draw the diagram. Yes. That time you need to be very careful. See, we are not going to judge you how beautifully you have drawn the diagram, but definitely we are going to judge you that how accurate diagram you have drawn. तो वो टाइम पे आपका डायग्राम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए. डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पर एक छोटा सा फंडा है कि जितना आपका पेपर साइज है और जो आपका डायग्राम का है वो अकॉर्डिंगली आपका डायग्राम का साइज होना चाहिए. सो आइडियली इफ यू हैव अ A4 साइज पेपर फॉर अ आंसर स्क्रिप्ट, देन एटलीस्ट फॉर अ डायग्राम यू मस्ट यूज 10 to 15 लाइंस का जो गैप है उतना आपको स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए. एंड माय सजेशन इज ड्रॉ अ रफ रेक्टेंगुलर in the area where you are trying to draw the diagram. तो पिछले क्वेश्चन का लाइन, अगले क्वेश्चन का कुछ भी स्पेलिंग या लाइनर उसमें जाकर मिक्स ना हो रहा हो. तो वो बनाना चाहिए. ट्राई करिए. Whatever labeling you are doing, you must do the labeling on the one side, and most of the time is question is
draw the diagram of neuron और नेफ्रॉन का तो डायग्राम वैसे भी जनरली ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, न्यूरॉन का जैसे डायग्राम है, तो जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यू हैव टू लेबल दीज पार्ट्स, देन बिसाइड दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रॉ लेबल एनी अदर पार्ट। ना तो आपको उसका मार्क्स मिलने वाला है, बल्कि वो एग्जामिनर को डिस्ट्रैक्ट करता है जो करेक्ट लेबलिंग है उसको चेक करने के लिए। इफ द क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम, लेबलिंग आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, देन यू नीड टू लेबल द पर्टिकुलर लेबलिंग विच इज मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर डायग्राम। फिर वहां पर आप साइटोप्लाज्म ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पे गोल्जी एपरेटस ड्रॉ कर रहे हैं, देयर इज नो सेंस। आपको जो मेजर लेबलिंग है वो यहाँ पर यूज करना चाहिए। ओके, ठीक है। बायोलॉजी में आपके इंग्लिश का बहुत बड़ा खेला है एक्चुअली, स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लोकेशन, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ये प्रपोजिशन आपको एकदम से सही से यूज करने हैं, क्योंकि वो इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, बिलो, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और पूरा सेंस गड़बड़ हो जाएगा। आई यूज्ड टू से माय स्टूडेंट दैट लाइक आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ से थायराइड ग्लैंड का लोकेशन आपसे पूछा गया, एंड इफ यू आर राइटिंग इट इज इन अ नेक रीजन। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंडिया में तो एटलीस्ट इसी एम के साथ लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो यदि आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो सर्जरी करो थायराइड का, तो आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से गर्दन काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। तो तब आपको पता चलता है ना कि एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर बच्चों को ये समझना जरूरी है कि वट एवर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज देयर, यूज अ करेक्ट प्रपोजिशन, यूज अ स्पेसिफिक लोकेशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है। करेक्ट। एक और चीज मैं यहाँ पर डायग्राम पर कहना चाहूंगी सुरेश सर, there are the many of the students, those along with the textbook, they keep on reading the books of 11th standard, 12th standard. Teachers are there, those who are giving lot of extra information, ये भी होता है, ये भी होता है करके, and sometime when especially you got the diagram based question, तो वो टाइम पे आप जज नहीं कर पाते, ये मुझे सेरिब्रम भी लग रहा है, ये मुझे फ्रंटल लोब भी लग रहा है। तो वो टाइम पर आप प्रिसाइज लेबलिंग के लिए जाइए जो स्पेसिफिक बेसिक फंडामेंटल लेबलिंग है। करेक्ट। और इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ये 3 पॉइंट पर मुझे मेड्यूला भी लग रहा है, मुझे स्पाइनल कॉर्ड भी लग रहा है, रीड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली गॉट द आइडिया कि वो 3 पार्ट क्या पूछा जा सकता है। करेक्ट। मेरे इस पे डायग्राम पे मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये था कि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले do you suggest that students should practice drawing all the diagrams and marking them clearly? Is that something which you yes, they must practice all the diagrams, but all the diagrams doesn't mean whatever the diagram is given in their book, and all the diagrams are important to draw the diagram. So if I'm talking about circulatory system, so structure of heart generally मतलब अभी मैं बोल दूं और इस बार आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज अब तक के रिकॉर्ड में नहीं आया कि टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? डायग्राम इंपॉर्टेंट है आर्टरीज एंड वेन्स का ट्रांसफर सेक्शन। सो व्हेन यू आर ड्राइंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, सो जनरली उस डायग्राम में ड्रॉ करने जैसा कुछ है नहीं, यू हैव टू ड्रॉ द डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जब वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, यू नीड टू डिफरेंशिएट ईच सर्कल। उसको आप पेंसिल शेडिंग से करिए, उसको आप सेल बनाकर करिए, ताकि 3 डिफरेंट लेयर अलोंग विद द ल्यूमेन क्लियरली विजिबल हो। और इसमें कलर पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। कलर पेंसिल, हाँ जी, आप कर सकते हैं, कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इतना टाइम होता नहीं है। आप अपनी पेंसिल से डायग्राम 101% आप पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। आपके पास में टाइम है और आपको लगता है मैं उसको कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली करिए। वन मोर थिंग, यू हैव टू ड्रॉ द सपोर्टिंग डायग्राम। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यदि आप ड्रॉ करते हैं सपोर्टिंग डायग्राम a rough diagram where in the question diagram is not asked, but
it can emphasize your explanation. वो आपके explanation को support कर सकता है. But if you have a time, or you can draw that diagram in fraction of a second, 4-5 सेकंड में छोटा सा rough diagram बना सकते हैं, तो जरूर बनाइए. Okay. Whenever you are writing the question, answer for a question where the function is asked and the function is transporting function, that time you have to mention from to where. Say, if the question is what is a function of ureter, so if you are writing, it helps to conduction of urine. From where? From my house to municipality, I mean sewage channel and all? No, you need to be specific. From kidney to urinary bladder. तो वो चीजों पर आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है. Okay, my last two questions. Semester 1 was of course all about plant physiology. Do you think students को एक अलग approach की जरूरत है when it comes to human physiology, which is there in semester 2? If I'm comparing plant physiology and human physiology, in human physiology, syllabus is little in detail. Yes. Little in detail, and there are the lot of parts in eye. If I'm talking about the eye, there are the 3 different layers, and each layer has a specific function. So उस point of view से animal physiology comparatively vast है for 10th class standard. अभी आप MSc level पे जाते हैं तो plant physiology भी उतना ही vast है, but right now it is comparatively little vast. तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने thorough study किया है. This particular time, अभी आपको ये भी बुक पढ़ूं मैं, ये भी बुक पढ़ूं, ये नहीं करना है. Either read from your textbook, otherwise from wherever till now, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे थे, आप कोई एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे कहीं से या ऑफलाइन पढ़ रहे थे, वहां आपको जो नोट्स अवेलेबल है वो नोट्स पे फोकस करिए, ताकि आप प्रिसाइज याद कर सकें. अभी इतना टाइम नहीं है कि आप thoroughly पूरा कहीं से भी पढ़ेंगे. Yes, this is not the time to get into new books. Actually, do lot of practice from the sample papers or the I mean आपका टेस्ट सीरीज में जो भी आपके सैंपल पेपर्स है वहां से प्रैक्टिस करिए. उसके फायदे क्या हैं? बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में एक क्वेरी था कि हम कौन सा वाला बुक खरीदें जो सेमेस्टर 2 के लिए अवेलेबल है. वेरी ऑनेस्टली, नॉट अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट, बट सेमेस्टर 1 में भी ये इशू था कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, वेयर इज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स आर देयर, एंड देयर आर द क्वेश्चन व्हिच आर आउट ऑफ सिलेबस. तो मेरा सजेशन ये है कि आप या तो अपने पर्टिकुलर जो आपका स्कूल टीचर है उसने जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, डू practice those questions, or if you have opt any of the online classes or offline classes जहाँ individual आपने लिया है, तो वहां पर आपको जो टेस्ट सीरीज दिया हुआ है वो क्वेश्चंस को करिए, ताकि आपको ये श्योरिटी रहे कि मैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं कर रहा. Secondly, if there is a doubt, then definitely ask from your teacher. मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी. Like it is, I think 4 years back, and there was a question. Whenever I teach photosynthesis, every time, यदि मैंने 1000 times क्लास में पढ़ाया, 1000 times उस रिएक्शन को लिखा है, 1000 times मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्लोरोफिल एंड सनलाइट मैंडेटरी है. When I was checking pre-board paper, that time there were 15 questions in my class. Those who have not mentioned chlorophyll, those who have not mentioned sunlight. I came to those students and asked कि क्या मैंने नहीं बताया? तो they said कि हाँ मैम आपने तो बताया, but वो 10 years वाली बुक में नहीं दिया था. And my question was that time was that कि वो टाइम पर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि टीचर से बात करना चाहिए, या तो मैडम आपने नहीं बताया, या आपने गलत बताया है, या इस बुक में गलत लिखा है. जहां पर भी आपको ऐसे लग रहा है कि टीचर ने जो बताया और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, प्लीज 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 फील फ्री टू आस्क. टीचर भी कोई I mean भगवान नहीं है, हो सकता है उससे मिस्टेक हुई हो, अब वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, या आप गलत पढ़ रहे हैं तो वो भी करेक्ट हो जाएगा. तो इफ यू आर टेकिंग एनी ऑफ द सेमेस्टर 2 बुक जो स्पेशली इस साल बनी है विदाउट लॉट ऑफ रिवीजन, तो इफ यू हैव एनी डाउट
कि हमारे टीचर ने, हमारे एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्टर ने, फैसिलिटेटर ने जो बताया और जो ये बुक में दिया है, वहाँ कोई तो डिफरेंस है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. वो डाउट को डेफिनेटली क्लियर करिए. राइट. माय लास्ट क्वेश्चन मैम, शुड स्टूडेंट्स अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन? टाइम तो रहेगा शायद, तो शुड दे अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन? देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, वो करना आइडियली, यदि मैं एज एग्जामिनर बात करूं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो आपको चॉइस दिया हुआ है वो ही करना चाहिए. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आईसीएससी चेकिंग पैटर्न, वहां पर ऐसा कोई फंडा नहीं है कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन को चेक करना है करके. तो यदि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्होंने किया है, दैट क्वेश्चन विल बी चेक, एंड अगेन उसका वेटेज, यदि ज्यादा बच्चा ले रहा है तो वो वेटेज दिया ही जाता है. करेक्ट. पहले आप पहले अपने 10 मिनट के रीडिंग टाइम पर फोकस करिए. वहां पर क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करिए, डिफरेंस पूछा गया है, लोकेशन पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है, डायग्राम पूछा गया है, जो चीज पूछी गई है, कंडीशन रिफ्लेक्स पूछा गया है. ठीक है, वो चीज को अंडरलाइन करिए. और उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर को करेंगे तब आप एक बार उसको क्रॉस चेक करते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं तब आप उसको क्रॉस चेक करते हैं. जब आप अपना एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप पहले उसको अपने हिसाब से सॉल्व करिए. राइट डाउन द आंसर इन योर आंसर स्क्रिप्ट एंड क्रॉस चेक ऑल द आंसर, eliminate all 3 options, then find out the correct answer. After that आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं. जैसा मैं आपसे पहले भी मैंने एक बार बोला कि 40 नंबर का पेपर आराम से 40 मिनट में होता है. सीधे 40 का हिसाब किताब है यहाँ पर. उसके बाद में you have a time. If you have a time, if you have revised, there is no harm to do extra question. आप मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, ये सोचकर मत बैठिए. ये सोचकर बैठेंगे तो आप पहले जो 3 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें गड़बड़ कर, डू इट इन हरी. आप उसको टाइम नहीं देंगे. इसलिए ये सोचकर नहीं जाना कि मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है. हाँ, खाली बैठे हैं तो टाइम पास क्यों करना है? टाइम पास करिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके. Okay, fine. Thank you very much, Smita ma'am, for all the tips and the detailed instructions and suggestions and advice that you have given. I'm sure the students will benefit greatly from your advice. Thank you very much for this. Thank you so much. Thank you so much, and all the best. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you very much.